Okay, so let us begin our session and we will start from where we left last time. ठीक है? Okay, so what we were discussing, basically we were discussing the electrophilic aromatic substitution, in case of heterocyclic compounds. In case of heterocyclic compounds. Now, as we all know, what are heterocyclic compounds? The compounds which have at least one ring member other than carbon. For example, this pyridine. As you can see, pyridine में एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन है. जैसे बेंजीन में अगर हम कार्बन को रिप्लेस करके नाइट्रोजन लगा दें, तो this will become pyridine. Now the question was कि let us say if we treat pyridine with Br2Fe, that is we are trying to do bromination, that is an electrophilic aromatic substitution, where exactly will the bromine get attached? At carbon number 1 or at carbon number 2 or at carbon number 3? This was the question, right? So we saw that whether we place it over carbon number 1 or carbon number 3, right? Whether we do it like this, let us say we are placing electrophile on the carbon number 1, then what is happening is nitrogen is gaining the positive charge, and nitrogen being electronegative, and apart from being electronegative, you can see nitrogen has incomplete octet. So this is giving us a very unstable erinium ion. Since this erinium ion is very unstable, we will not do substitution on the carbon number 1. Then the choice left is 2 or 3, right? If we place the electrophile on carbon number 3 like this, again positive charge is going to come over here like this, and if we move this double bond over here, we will be getting the same problem as earlier. That is, the positive charge is coming on nitrogen, and that too with incomplete octet. So we will avoid placing electrophile over carbon number 1 or 3. Then the obvious option with us is carbon number 2. So the electrophilic substitution will take place at carbon number 2. Okay, Aratrik? हाँ सर. ये देख लिया था हम लोगों ने? हाँ सर. कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं सर. ओके, जो नेक्स्ट हम देख रहे थे और जो लास्ट हमने जो किया था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, वो एक बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड का किया था, दैट इज कॉल्ड इंडोल. Indole is also an aromatic compound, and we were asked, or I asked you, where should we keep our electrophile in order to have a fast reaction? Again, we had two options, carbon number 1 or carbon number 2. We are just leaving this ring as it is because disturbing the ring will lead to loss in aromaticity, and we don't want that, right? So we had agreed upon placing the electrophile on carbon number 2. Why? Because in that way, carbon number 1 will be gaining positive charge, and this positive charge can be directly stabilized by the lone pair of nitrogen. Okay, got my point? Yeah, Deepan, can you hear me? हाँ sir. Okay. Ushnish, can you hear me? Don't be late, otherwise there will be problem. I'll have to accept your request and then there will be problem, right? So don't be late, Ushnish, from next time. Okay, so let's come back to our
topic what we were discussing. So we were discussing about indole, and we found that the substitution should be done on position number 2. And after that, there is hydrogen over here that will bring back the aromaticity, that very generic things that we have discussed again and again. We know that the aromaticity has to come back over here, but electrophile will be placed over here. तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था. ठीक है, चलिए. तो इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए. इसमें किसी को डाउट है तो. देवायन, अभी इंडोल वाला डाउट तुम्हारा क्लियर हो गया ना? हाँ सर. देवायन, हाँ सर. इंडोल वाला तुम्हारा क्लियर हो गया, और बाकी जो हम लोगों ने केसेस पहले देखे थे उसका भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं सर, ठीक. राइट, ओके ओके ओके. सो लेट अस कम एंड सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस, क्योंकि पिछले बार जब हम लोगों ने EAS खत्म कर लिया था, तो देयर आर सम क्वेश्चंस दैट शुड बी सॉल्व्ड at this point of time, so that हमारा concept जो है और improve हो जाए. As you can see on the screen, I have put a lot of questions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There are 10 questions. We will be doing one by one. And it is not me who will be doing these questions. You will be doing these questions. So let us start with question number 1. And only you have to reply when I ask you. Okay? So I would like Deepayan to speak up. Deepayan, please unmute yourself. हाँ सर. Yes, please tell me what will be the answer in question number 1. सर BR से तीनों जगह पर लग जाएगा सर. 2 ऑर्थो और 1 पैरा. Very good. Okay, mute yourself, Deepayan. Since OH is a highly activating group, that means it will also be ortho and para directing. But since it is highly activating group, the electrophile, which is Br plus, not only gets attached to one ortho or one para, but both the ortho and the para. So we will be getting 2, 4, 6 tribromophenol. This will be our answer. 2, 4, 6 tribromophenol will be the answer. Now moving on to question number 2. As you can see, again in phenol, we are adding Br2, but this time we have changed the solvent. Now we have CS2 as a solvent. Let me tell you the difference between CS2 as a solvent and water as a solvent. Water is a polar solvent. Water being a polar solvent, whereas CS2 being a non-polar solvent. So what difference this solvent is going to? Okay, so can you answer? सर यहाँ पर ब्रोमीन रेडिकल होगा. Deepan, unmute yourself. हाँ सर. Okay, who is this? हाँ दीपन, प्लीज बताइए. देखिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट के होने की वजह से though the ring is activated, but Br plus का formation will not be that easy. ठीक है, तो do not expect all the 3 ortho and para positions to be occupied. Expect only one to be occupied. या तो ortho या तो para. ठीक है, CS2 लगाने से ये difference आएगा. और para will be major thanks to steric hindrance on ortho. आया समझ में दीपन? हाँ सर. Okay, let us move to question number 3 then. Question number 3, Ratrik. सब पहले जैसा ही होगा फर्स्ट. Exactly, है ना, पहले जैसा ही होगा. मतलब aniline is so activated a ring, it is so activated a ring that Br will like to be attached to all the 3 ortho as well as para positions, right? And Ratrik, what will happen in question number 4 then? खाली ऑर्थो और पैरा.
नो, यहीं पर आप फंस गए है ना, यहीं पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, और जो हमने पिछले केस में पढ़ा है एग्जैक्टली उसको नहीं लगा सकते। यहाँ पे भी तीनों ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे लग जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगेन याद करिए, मैंने आपको बोला था कि NH2 इज इवन मोर एक्टिवेटिंग एज कंपेयर टू, प्रोड्यूस कर दिया है रिएक्शन को थोड़ा सा सप्रेस करने के लिए, बट NH2 इतना एक्टिवेटिंग है कि फिर भी ब्रोमीन को तीनों जगह पे जाके लगा देगा। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए कि आपने थोड़ा सा वेट कम कर दिया है, इधर रिएजेंट के एंगल से आपने थोड़ा सा वेट कम कर दिया है, बट NH2 जो है वो उसको मोर देन कॉम्पनसेट कर ले रहा है ना। आपने थोड़ा सा एक्टिवेशन कम किया सॉल्वेंट को नॉन पोलर करके, लेकिन NH2 बीइंग सच एन एक्टिवेटिंग ग्रुप कि उस इफेक्ट को नलीफाई कर देगा, और नलीफाई करके क्या कर देगा, ब्रोमीन को तीनों जगह लगा देगा। ठीक है प्रज्ञा ज्योति, इज इट क्लियर? हाँ सर। प्रज्ञा ज्योति क्लियर है ना? हाँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में सोचिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज गो अहेड। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में सोचिए। रात्रिका, हाँ सर। what do you think? What should be the answer? सर ओ मिथाइल के लाइट में जो पोजीशन है वहां। Okay, okay, Ratrika. I think you have guessed it right as far as your concepts are concerned. Because अगर देखा जाए तो ये एक्टिवेटिंग है और ये सारे डीएक्टिवेटिंग। ठीक है, तो म्यूट योरसेल्फ रात्रिका, म्यूट योरसेल्फ। So क्योंकि OMe is activating and other three are deactivating, and I've always told you that whenever we have activating and deactivating groups, you always do the substitution according to the activating group. So बिल्कुल आपने सही गेस किया कि OMe के रिस्पेक्ट में यहाँ पर लगना चाहिए, है ना। लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, और जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था समथिंग अबाउट इप्सो सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हो जाता है, और यहाँ पर इप्सो सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय इप्सो सब्स्टिट्यूशन? इप्सो सब्स्टिट्यूशन का मतलब है, इप्सो सब्स्टिट्यूशन का मतलब है दैट डू नॉट एक्सपेक्ट एनी हाइड्रोजन टू बी रिप्लेस्ड, बट इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन दिस CO2 ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड, और CO2 ग्रुप के जगह आके क्या लग जाएगा, हमारा इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमीन, और CO2 गैस बन के निकल जाएगा। ठीक है, मैं फिर से आपका रिवाइज करा देता हूं हाउ एग्जैक्टली दिस विल हैपन, है ना। फिर से एक बार देख लीजिए हाउ एग्जैक्टली दिस इज गोइंग टू हैपन। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ COH। COH का स्ट्रक्चर होने वाला है इस तरह का। तो सबसे पहले जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है Br+, उसको हम यहाँ पर अटैच कर देते हैं। कौन से पोजीशन पे अटैच करेंगे? इस पोजीशन पे, है ना। जैसे ही आप इसको इस पोजीशन पे अटैच करोगे, इसको Br+ को, तो क्या होने वाला है देखिए, Br यहां पर लग गया और पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया। अब रिंग में एरोमेटिसिटी वापस लाने के लिए इस पोजीशन से जहां पे COH लगा हुआ है, वहां से एक हाइड्रोजन हम आमतौर पे निकालते हैं, बट यहां पर तो वहां हाइड्रोजन है ही नहीं, उसके जगह COH है। कोई बात नहीं, COH में तो ये हाइड्रोजन एसिडिक है, तो जो बेस है हमारे पास, दैट बेस कैन एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन। वंस दिस हाइड्रोजन इज एब्स्ट्रैक्टेड, this bond will come over here and this bond can come here and bring back the aromaticity। ठीक है, तो CO2 भी निकल गया, बेस को हाइड्रोजन भी मिल गया, और ब्रोमीन वहां पर अटैच भी हो गया। तो यहां पर भी कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा? इप्सो सब्स्टिट्यूशन। नोटेड डाउन। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। सर
यस, सर वो बेस COH में क्या हुआ और एक बार बताएंगे? फिर से बता देता हूँ। चलिए यहाँ दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ COH को कंसिडर करूंगा, है ना, बाकी को आप समझ लेना कि वहां पर ग्रुप्स है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर COOH ऐसे लगा दिया, ठीक है। अब Br प्लस बीइंग एन इलेक्ट्रोफाइल वो कहाँ पे अटैच हो रहा है, यहाँ पर जाके अटैच हो जा रहा है, कोई दिक्कत? अब Br प्लस यहाँ पर अटैच होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो आएगा ना, उत्तियो, कोई दिक्कत? नहीं सर, उत्तियो नहीं, ठीक नहीं है। सर, नहीं सर। अब एक्सपेक्टेशन क्या होता है, एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि जिस कार्बन पे Br लगा है वहां पर एक हाइड्रोजन होता, तो वहां से हाइड्रोजन को बेस निकाल लेता और यहाँ पर एरोमेटिसिटी रिंग के अंदर वापस आ जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पे तो COH है। तो COH को आप ध्यान से देखिए, COH के पास यहाँ पर एक एसिडिक हाइड्रोजन है, तो बेस अगर मान लो एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाए तो यहाँ से H प्लस जाएगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा या नहीं आएगा? ऐसे सोच के देखो, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना? हाँ हाँ हाँ। ओके। और ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये वाला कार्बन, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, इस बॉन्ड को मैं अगर ऐसे ब्रेक कर दूं, ऐसे, सच दैट 1 पर नेगेटिव और 2 पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी रिंग में, यस और नो? और 2 पर पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, तो डेफिनेटली वो बॉन्ड बना लेंगे ना। हाँ सर, समझ गया। समझ में आई बात? हम्म। लेकिन ऐसा नहीं समझना है कि एक्चुअल में वहां नेगेटिव पॉजिटिव आता है, ये मैं बताने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। एक्चुअल में जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है वो बस यहाँ रिंग पर होता है, बाकी बॉन्ड्स घूमते हैं, बट फिर भी समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, बार बार मैं बोलता हूँ। हाँ सर। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रेयान, इज इट क्लियर टू यू? श्रेयान? Yes, sir. ओके ओके, म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ। शायंतिका? यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने होमवर्क भी दिया था। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एंथ्रासीन। क्या लगता है एंथ्रासीन के कौन से पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए? सर मिडिल वाला रिंग का ऊपर और नीचे। बिल्कुल करेक्ट शायंतिका, मिडिल वाले रिंग पर ही हमें करना है। क्यों करना है मैं आपको बताता हूं, देखिए, क्योंकि मान लो आपने यहां से ये डबल बॉन्ड हटाकर यहां पर इलेक्ट्रोफाइल लगा दिया। अब ध्यान से समझो, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर, इन 4 कार्बन्स पे तो नहीं लग सकता इलेक्ट्रोफाइल। व्हाई? क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन है ही नहीं। इलेक्ट्रोफाइल इज ऑलवेज अटैच्ड टू दैट कार्बन वेयर देयर इज अ हाइड्रोजन टू रिप्लेस. In these 4 carbon atoms you don't have any hydrogen to replace, so you are left with only these options, this or this. अब दोनों में से किसी पे कर दो, एक ही बात है। एनीवेज, अगर यहां पर आपने किया तो यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये आपका साइक्लिक एरिनियम आयन हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। और इस पॉजिटिव चार्ज को जब आप स्टेबिलाईज करने के लिए इस बॉन्ड को यहां मूव कराओगे, तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करना। क्या नोटिस करोगे, ध्यान से देखना, कि ये दोनों ही रिंग्स, ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल लगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस साइक्लिक एरिनियम आयन में ये रिंग और ये रिंग दोनों ही एरोमेटिक है। अब दो एरोमेटिक होने की वजह से ये वाला जो इंटरमीडिएट है ये हाईली स्टेबल हो जाता है। एंड व्हाट डू वी वांट? वी वांट आवर एरिनियम आयन, वी वांट आवर इंटरमीडिएट टू बी हाईली स्टेबल। और अगर ऐसा हाईली स्टेबल हमको कंपाउंड एरिनियम आयन मिलता है तो फिर हमें क्या दिक्कत है सब्स्टिट्यूशन करने में? तो सब्स्टिट्यूशन विल ऑलवेज ऑकर ऑन दिस पोजीशन। उसके बाद तो आपको पता है यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, दैट विल कम बैक, एरोमेटिसिटी विल कम बैक, तीनों रिंग साथ में मिलकर एरोमेटिक हो जाएंगे, बट इलेक्ट्रोफाइल विल बी अटैच्ड टू दिस वन, दिस मिडिल वन। एनी डाउट्स एनीवन? किसी को कोई डाउट? चलिए, कोई डाउट नहीं है तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी है। यहां भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसका नाम है फेनेंथ्रासीन। फेनेंथ्रासीन, टेल मी व्हाट विल हैपन इफ यू डू फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन विद फेनेंथ्रासीन? प्लीज गो अहेड। उष्णीश,
Ushnish, can you hear me? हाँ सर। So tell me कहां पर होगा substitution? 3 सर रिंग दिख रहे हैं। थोड़ा टाइम दीजिए। ओके, ठीक है, टेक योर टाइम। As we all know, phenanthracene is also an aromatic compound. मैंने जब aromaticity पढ़ाई थी तो आपको बताया था। यस दीपन, हाँ सर। क्या लगता है कहां पे लगेगा? सर मिडिल वाले रिंग पे। अगेन मिडिल वाले रिंग पे लगेगा, एग्जैक्टली, क्योंकि मिडिल वाले रिंग पे लगा दिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इन दिस एरिनियम आयन अगेन वी आर हैविंग two proper aromatic rings, so this will give us extra stable erinium ion. So we would like our electrophile, which is CH3 in this case, to be attached over here only. और उसके बाद तो हमको पता ही है, यहाँ से हाइड्रोजन जाता है, एरोमेटिसिटी वापस आ जाती है, डबल बॉन्ड वापस आ जाता है, तो यहीं पर जाके CH3 लगेगा। किसी को डाउट इसमें? और अगर आपको डाउट, हाँ जी बोलो, कौन है? यस बोलिए। डाउट नहीं। हाँ जी, फिर बोलिए। ओके, सो जिसको डाउट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। Try to solve question number 8.